A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. As you know very well, in the last few videos, we discussed the first chapter of business studies, that is the nature and significance of management. In this chapter, firstly, we discuss what is management, what are the concept of the management, and we can see that there are basically two concepts of management, that is a traditional concept of management and the modern concept of the management. Thereafter, we discuss a lots of feature of management. With the help of the study of the management, we can easily introduce about the management, what is a management, and we can see that management is a goal-oriented process. It is a pervasive. It brings a dynamic organization and वगैरह वगैरह. So, with the help of management, we can easily achieve a high goal with the minimum resources. And in the last video we discussed the nature of management, and we can see that few author says that the management as a science, few author says that the management as a profession, and few author says that management as a art. And in the last video we see that management is not a pure science, it is an inexact science, it is a social science. And if we are talking about the management as an art, so we can see that all the feature of the art will be present in the management. That's why we can say that management is a pure art. And number third, management as a profession. So in this video, first of all, we discussed is management as a profession. We are talking about in today's video, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? अगर मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो क्यों है, और अगर प्यूरी तरह से ये प्योरली प्रोफेशन नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है. सो बिफोर द कंक्लूडिंग द रिजल्ट इज द मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, फर्स्टली वी डिस्कस्ड व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट आर द फीचर ऑफ द प्रोफेशन, and thereafter we compared the feature of the profession with the feature of the management, and at last we find that management is a profession or not. So let us start today's video. So as you can see that on your screen, that is a profession means occupation that requires specialized knowledge. Profession एक ऐसा occupation होता है जिसके लिए एक specialized knowledge and practice की ज़रूरत होती है, और वो प्रैक्टिस या वो नॉलेज कहाँ से आती है? फॉर्मल एजुकेशन से आती है. सो प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन, एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन होता है विच रिक्वायर्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है. यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल एजुकेशन कंडक्ट विद द फॉर्मल इन्वायरमेंट, जैसे आप लोग स्कूल में आते हो एक फॉर्मल एजुकेशन गेन करते हो, एंड इनफॉर्मल एजुकेशन लाइक अ डिस्टेंस एजुकेशन. सो मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन के साथ कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो फर्स्टली वी हैव टू गेन द सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रोफेशन. हमें उससे पहले ये जानना ज़रूरी कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, एंड वी फाइंड दैट प्रोफेशन इज़ अ ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड अ प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. यानी प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिस कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन. एंड इट इज़ ऑल्सो एक्वायर्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी. इट इज़, प्लीज़ नोट डाउन, विच इज़ एक्वायर्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी. यानी मैनेजमेंट की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, ये नहीं कि कोई भी प्रोवाइड कर देगा, इसके लिए प्रोफेशनल बॉडी का होना ज़रूरी है. द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशन आर, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द प्रोफेशन? So we can see that the first feature of the profession is systemized body of knowledge. A profession is based on a systematized body of knowledge. It means प्रोफेशन के लिए एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए. जैसे एक प्रॉपर कोर्स ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन के लिए, एक करिकुलम होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी मेडिकल प्रोफेशन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियर प्रोफेशन, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, सो यू कैन सी दैट इसके लिए एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसके लिए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एसोसिएशन होते हैं. सो वो पूरा एक करिकुलम डिसाइड करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपका कोर्स एंड करिकुलम क्या होगा, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको कौन सी नॉलेज लेनी ज़रूरी है, किस
तरह के सब्जेक्ट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. सो प्रोफेशन लाइन में एंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रॉपर सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है. Number second is restricted entry. It is very important. Entry into the profession is restricted through an examination or degree as in the medical and law profession. And if we are talking about the entry regarding the profession, अगर हमें किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री चाहिए, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में पहले आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए. अगर आपको डायरेक्ट एंट्री चाहिए तो यू हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन. आपके पास प्रॉपर 10+2+3 यानी प्रॉपर एक ग्रेजुएशन की गाइडलाइन रखी गई है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर और मेडिकल फील्ड में अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको नीट, क्लैट, नीट और डिफरेंट टाइप्स के जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एसोसिएशन के पेपर होते हैं, एम्स के जो पेपर्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है. दैट्स वाई मैनेजमेंट, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन वर्ल्ड में एंट्री करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक एग्जामिनेशन आपको पास करना पड़ता है या फिर आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है. यानी ऑल द पर्सन कैन नॉट इंटर्ड इनटू अ प्रोफेशन बिकॉज इट एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थ्रू दैन एग्जामिनेशन और डिग्री. उसके लिए एक प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है या आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए. नंबर थर्ड फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन. यस, हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर एसोसिएशन होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लॉयर्स, सो यू नो वेर लॉयर्स के लिए होता है बार काउंसिल. उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. मेडिकल फील्ड के लिए होता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. इंजीनियरिंग के लिए भी होता है उसी तरह से. So you know very well, you can see that all professionals are bound to be a part of the professional association which regulates entry, grants certificate of practice and enforces a code of conduct. यानी प्रोफेशनल एजुकेशन, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोफेशनल बॉडीज़, प्रोफेशनल एसोसिएशन का क्रिएशन किया जाता है, जिनका काम क्या होता है, एंट्रीज़ को रेगुलेट करना कि सही बंदा, सही स्टूडेंट एक सही कोर्स को ज्वाइन कर सके, प्रॉपर टाइम पे उसे सर्टिफिकेट देना. सर्टिफिकेट का बेसिस क्या होगा, एग्जामिनेशन, और एक पूरे प्रोफेशन एसोसिएशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना, विच इज़ ऑल्सो द फीचर ऑफ द प्रोफेशन. एज यू कैन सी द पॉइंट नंबर 4, द कोड ऑफ कंडक्ट. क्योंकि हर प्रोफेशनल बॉडी का एक प्रॉपर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी जिसको फॉलो करना हर प्रोफेशनल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हर प्रोफेशन, जैसे चाहे लॉयर्स हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंजीनियर हो, उनका एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि वो जब तक प्रोफेशन वर्ल्ड में रहेंगे, लाइफ टाइम वो एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे. बिकॉज प्रोफेशन एक ऐसा वर्ल्ड है जो आप जब से आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं तब से लेकर जब तक अप टू द डेथ आपके साथ वो प्रोफेशन अटैच रहता है. जैसे इफ़ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक एक्सपायरी डेट है कि जब आप 60 या 70 ईयर्स के हो जाओगे तो यू विल गेट द रिटायर्ड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट. नो, उसके लिए रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं है. हाँ, कहीं आप वर्क करते हो, सैलरी लेते हो, कहीं आप एज अ एम्प्लॉय काम करते हो, तो उसकी एक लिमिटेशन होती ज़रूर है. बट प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. डॉक्टर्स की होती है? नो, डॉक्टर्स जब तक रहता है तब तक अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर फिजिकल स्टेमिना है, सो ही कैन डू देयर वर्क विद देयर ओन विलिंगनेस. सो प्रोफेशनल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि उसे पूरे जीवन भर, जब तक कि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में है, तब तक उसे उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है. एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी होना ज़रूरी होता है, जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को मॉनिटर करता है, एंट्रीज़ को रेगुलेट करता है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है ताकि लोग अपने प्रोफेशन का मिसयूज़ ना करें. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल लाइन, सो यू कैन सी दैट कितने तरह के मिसयूज़ होते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें हम लोग, चाहे हम किसी भी तरह के, किसी को कोई बीमारी बताकर हैवी मनी उससे वसूलने लगे कि अरे ये बहुत बड़ी बीमारी है, जबकि उसको कुछ नहीं है. हम जानते हैं कि वो अच्छा बंदा है, उसके पास खूब पैसा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको परेशान करके उससे ढेर सारा पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं. तो ऑल द थिंग्स आर अपोज टू द ethical code of conduct of the professional body. So that's why the fourth feature of the management is the ethical code of conduct. So you can see the first four feature of the profession, that is systematized body of knowledge, restricted entry, professional association,
code of conduct, and number 5th is a service motive. It is a very important. The basic motive of each professional is to render committed service to the society. Basically जो professionals body उनका basic motive होता है कि लोगों को service provide करना. उनका committed क्या होता है कि वो लोगों को service दें. उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न नहीं होता है. जैसे एक डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर का प्राइमरी एम है कि वो अपने मरीजों का, अपने पेशेंट्स की को सर्विस दें, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें. उसी तरह ICAI के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, उनका प्रॉपर काम क्या होता है कि अकाउंट्स को वेरीफाई करना. उनका एम ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाएं. प्रोफेशनल बॉडीज़ का अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली 5 फीचर्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. Number 2, restricted entry. Number 3, professional association. Number 4, ethical code of conduct, and number 5 is a service motive. Let's we discussed कि क्या ये जो मैनेजमेंट है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट. सो लेट्स वी ड्रॉ कंक्लूजन कि वेदर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट. सो फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट वेदर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट. यानी इस पॉइंट से हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि प्रोफेशन जो हमारा मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है कि नहीं है. जैसे सबसे पहली बात अगर हम बात करें, लाइक प्रोफेशन, मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. यस, मैनेजमेंट में एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रॉपर एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, सो इसके लिए भी अब एक कोर्सेज चलाए गए हैं जैसे कि MBA, BBA. सो BBA और MBA करने के लिए प्रॉपर कोर्स एंड करिकुलम डिज़ाइन किया गया है. ठीक है. सो दैट्स वाई यू कैन सी दैट लाइक प्रोफेशन, मैनेजमेंट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल विच आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. One can acquire such knowledge by pursuing course like MBA, BBA, etc. and acquire managerial skill through instruction and training. So the first feature of the management, the first feature of the profession is present in the management. यानी प्रोफेशन का जो फर्स्ट फीचर था, दैट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज़ प्रेजेंट इन द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट. क्योंकि मैनेजमेंट का भी जो कोर्स और करिकुलम होता है, जो नॉलेज होती है वो वेल डिफाइंड होती है. द नंबर 2, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंट्री, सो इन मैनेजमेंट नो सच रिस्ट्रिक्शन इज़ देयर फॉर द मैनेजर टू क्लियर एन एग्जामिनेशन और होल्ड अ डिग्री. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर तो आपके लिए किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. सो ये आपने देखा कि द सेकेंड फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट का जो एंट्री एग्जिस्ट होता है वो टोटली ओपन होता है. कोई भी पर्सन ईजली या कोई भी स्टूडेंट ईजली मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है. हाँ, एक अभी तक कुछ देखने को मिल रहा है रिसेंटली. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो द पर्सन हु होल्ड MBA डिग्री और BBA डिग्री, they can only become a manager in the reputed companies. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में अगर देखें तो उसके लिए कोई मैनेजमेंट डिग्री की होने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम एज अ होल देखें, पूरे इंडिया को देखें, तो वी कैन सी दैट मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी कम देखने को मिली है. दैट्स वाई वी कैन से दैट these days more and more people are appointed for managerial post who possess manager degree. यानी पहले तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी मैनेजर बन जाता था, कोई भी मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री ले सकता था, उसके लिए कोई नहीं था. बट अभी नाउ डेज की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिल रहा है. मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी एज वेल एज द मिडिल सेक्टर पे काम करने वाली कंपनीज भी क्या कर रही हैं, इस प्रोसेस को फॉलोअप कर रही हैं. लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है. यानी ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया के जो 100% कंपनीज़ हैं वो सिर्फ उन्हीं मैनेजर्स को रखती हैं जिनके पास एक प्रॉपर कोर्स डिग्री. सो प्रोफेशंस में एंट्री लेने के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन एंट्रीज भी है. नंबर 3 इज़ रूल एंड रेगुलेशन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट रूल एंड रेगुलेशन, सो दिस काइंड ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन इज़ नॉट appropriately applied in every types of the manager. बेसिकली अगर हम बात करें इन मैनेजमेंट, नो सच रूल्स एंड रेगुलेशन आर फ्रेम टू गाइड टू मैनेजर थ्रू अ कोड ऑफ कंडक्ट, बट CSR, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, प्रेस्क्राइब द वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस टुडे. यानी अगर हम प्रॉपर देखें तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है मैनेजर्स के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप अगर प्रोफेशन मैनेजर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. ऐसा कुछ नहीं है.
यानी अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स की, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, सो वी कैन सी डैट कि पहली बात तो प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। बट कुछ गाइडलाइन आ रही हैं इंडिया में कि मैनेजर्स को भी कुछ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोफेशनल बॉडी, सो हर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो 100% प्रोफेशनल्स चीज़ें हैं, लाइक मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, चाहे हम ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सारी चीज़ें उन सारे फील्ड में एप्लीकेबल हैं। बट अगर हम मैनेजमेंट की फील्ड की बात करें तो मैनेजमेंट में ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है कि 100% प्रोफेशनल एसोसिएशन होना ज़रूरी है। हाँ, इसके लिए कई तरह के IIM कॉलेज खुल रहे हैं जो कि मैनेजमेंट फील्ड को मोटिवेट कर रहे हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि वो मैनेजमेंट फील्ड को ज्वाइन करें। बट बेसिकली इसके लिए कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन क्रिएट नहीं किया गया है, या ना कि मैनेजर्स के लिए मैंडेटरी किया गया है, लाइक अदर्स मेडिकल्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कि स्पेसिफाइड और मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो यू कैन सी दैट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती मैनेजमेंट में, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्योर प्रोफेशन। नंबर 3, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता प्रॉपर, सो इट इज़ नॉट अ प्योर प्रोफेशन। मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल एसोसिएशन की कमी है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्योर प्रोफेशन। एंड नंबर 4, ऑल मैनेजर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सारे मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली बात करें चाहे इनडायरेक्टली बात करें, वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, खुद की डेवलपमेंट की बात करते हैं और सर्विस मोटिव की बात करते हैं। सो अगर हम पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करें, there are basically 5 feature of the profession. The first one is the systemized body of knowledge जो कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो कि मैनेजमेंट के फील्ड में नहीं होती है। नंबर 3 इज अ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 4, प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैनेजमेंट में भी अभी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैनेजमेंट फील्ड में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। एंड नंबर 5 इज़ द सर्विस मोटिव। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट के फील्ड में सर्विस मोटिव भी आता है। बेसिकली इस समय मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो सर्विस मोटिव से ज़्यादा लोगों के लिवलीहुड का सोर्स है। यानी मोस्ट ऑफ द पर्सन मैनेजमेंट इसलिए ज्वाइन करते हैं या मैनेजमेंट फील्ड इसलिए ज्वाइन करते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपना जीवन चला सकें। एंड यू कैन सी दैट द प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैनेजर जो फील्ड से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिकली अपना घर चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जॉब करते हैं। तो हम ये नहीं डायरेक्टली कह सकते कि मैनेजमेंट का जो प्रोफेशन है वो पूरी तरह से सर्विस मोटिव है, नहीं। इनका मेन फोकस होता है अपना जो बेसिक नीड है और अपनी सोशल नीड है उनको फुलफ़िल करना। इनका बेसिक पर्पस सर्विस मोटिव नहीं होता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यू कैन सी दैट कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे इंडिया में कि हम मैनेजमेंट को बैक से उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन रख रहे हैं या फिर हम उनके लिए एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जो कि उनको हेल्प करे ताकि उनका ये जो प्रोफेशनल लाइन है और ग्रो करे। बट इंडिया इस पर कुछ विचार कर रहा है, कुछ सजेशन आ रहे हैं। सो अगर हम पूरा थ्योरेटिकल स्टडी करें आज के इस पूरे वीडियोस का, अभी तक के इस वीडियोस का, सो वी कैन फाइंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी it can be said that the management has some of the characteristics of the profession. कुछ characteristics professions के हैं, thus it should be considered as not a full-fledged profession. यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक पूरी तरह से प्रोफेशन है, बट हाँ only a developing profession. It is not a pure profession, it is an inexact profession. It is not a exact profession, it is a developing profession. यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है पूरी तरह से, ये एक ऐसा मैनेजमेंट का जो एरिया अभी प्रोफेशन की तरह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अभी तक समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट। सो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्योर प्रोफेशन, इट इज़ अ वे टू बिकमिंग अ full-fledged profession. So, and the end of today's video, let's we move to the small topic. As you know very well कि in the last video we already discussed the level of management and we can see that there are basically 3 level of the management: top level, middle level and lower level. Basically top level management includes the CEO,
board of directors, that is president, chairman. And if we are talking about the middle level of the management, it includes the manager of the different department के जो managers होते हैं उनको include किया जाता है किसमें, in the professions, sorry, in the middle level of management. Or if we are talking about the lower level of management, so it includes the supervisor, foreman, clerk, superintendent. So इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉपरली डिस्क्रिमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी विल गेट कन्फ्यूज कि व्हाट आर द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एंड वी विल गेट द कन्फ्यूज्ड कि सर टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, हाउ दे कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, ये सब एक दूसरे से कैसे अलग हैं. सो उस सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं. द नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम रेंज. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इट कवर्स लॉन्ग स्पैन ऑफ पीरियड, मिडिल लेवल इट कवर्स इंटरमीडिएट रेंज, एंड सुपरवाइजर इट इज़ कंसर्न विद द शॉर्ट पीरियड. देखो, इसको मैं समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ कि जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसका जो स्पैन होता है, कंट्रोल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके पास टाइम भी ज़्यादा होता है. मिडिल लेवल मैन के बाद रेंज भी कम होता है, कंट्रोल काफ़ी कम लोगों के होता है, और उनका पीरियड जो होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब ना टॉप लेवल से ज़्यादा होता है ना सुपरवाइजर लेवल से कम होता है. और सुपरवाइजर लेवल की बात करें तो इट्स कंसर्न विद द शॉर्ट पीरियड. सुपरवाइजर लेवल बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हायर होते हैं. अगर उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है सो ही विल दे विल कंटिन्यू विद द बिजनेस. स्किल की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव स्किल, whereas the middle level management require the persuasive skill, and supervisor level is concerned with the operative skill. यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को परसुएसिव होना चाहिए. परसुएसिव मतलब दूसरों से काम निकालने की स्किल होनी चाहिए, और सुपरवाइजर लेवल को काम करने की स्किल होनी चाहिए. इवेल्युएशन की बात करें तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट इट्स अचीवमेंट. मतलब अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो ये डिफ़िकल्ट होता है इनके अचीवमेंट को फाइंड आउट करना कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने अपना अचीवमेंट, अपना गोल अचीव किया कि नहीं किया. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो इट इज़ लेस डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट इस परफॉर्मेंस. यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट हाँ लेस डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है. और सुपरवाइजर लेवल इट इज़ ईजी टू इवेल्युएट इस परफॉर्मेंस. सुपरवाइजर लेवल तो ऑपरेटिव लेवल के होते हैं, तो उनको अपना आपको इवेल्युएट करना आसान होता है. Next is number of person. So top level of management involves a few person. Middle level of management involves a moderate number of person, and supervisor level is concerned with a large number of person. यानी top level में कुछ ही लोगों के हाथ, कुछ ही लोग ही कंपनी के CEO होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं. ऐसा नहीं कि सब लोग बन जाते हैं, नहीं ना. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ ही लोग आते हैं. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी मॉडरेट लोग आते हैं, यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. लेकिन अगर हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल की तो इट इज़ कंसर्न विद द लार्ज नंबर ऑफ पर्सन. लार्ज में इसमें बहुत लोग होते हैं, यानी जो काम ज़मीनी स्तर पर काम को करते हैं ना, जो दे आर एक्चुअल ऑपरेटर, जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, दे कॉल्ड द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है वो होता है लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस. ज़्यादा लोग होते हैं, उन ज़्यादा लोगों को कुछ लोग, जैसे अगर 100 लोग हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो दे आर रिलेटेड टू द सुपरवाइजर लेवल. और 100 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 10 लोग बनाए गए, दे विल बी नोन एज द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और 10 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 2 लोग बनाए गए, दैट इज़ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. If you are talking about the next basis of the difference, that is a formal policy formulation, the formulation, it is concerned with the formulation of policy to a greater extent. टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसर्न होता है वो होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने से, यानी उनका मेन फोकस होता है कि पॉलिसी को कैसे क्रिएट किया जाए, पॉलिसी कैसी हो, बिकॉज दे आर द जनरेटर ऑफ द पॉलिसी एंड द ऑब्जेक्टिव. यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि हमें काम कैसे करना है, एंड दे ऑल्सो डिसाइड अबाउट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट. 2 काम डिसाइड करना पड़ता है टॉप लेवल को, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का और किस पॉलिसी पे काम किया जाएगा.
मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस पॉलिसी के फॉर्मुलेशन पे वर्क करता है, मॉडल पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ उस पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अप्लाई करना है। यानी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव, ताकि हम ऐसी पॉलिसी अप्लाई करें ताकि हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सके। अब वी आर टॉकिंग अबाउट सुपरवाइजर लेवल, तो उनका काम होता है पॉलिसी को फॉर्मुलेट ना करके बल्कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। टॉप लेवल पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑप्शन देखता है, और सुपरवाइजर लेवल मिडिल लेवल के थ्रू मिलने वाले इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करता है। The last difference between the top level of management, middle level and supervisor level management is that it is determinative, it is more administrative than managerial. Middle level, it is more executory and managerial than administrative. And number third, it is operative, it is more supervisory than managerial. So if you're talking about this thing, so we can say that the top level of management determinative मतलब destination तय करना, इनका मेन फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैनेजरियल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है। इट इज़ मोर एडमिनिस्ट्रेटिव देन मैनेजरियल, यानी मैनेजरियल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है, इनका मेन फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, कैसे हम पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली काम होता है कि समझना, सोचना कि हम हाउ वी विल कंट्रोल द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरह से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ मोर एग्जीक्यूटरी। ये डिटर्मिनेटिव नहीं होते, ये नहीं डिसाइड करते कि हमें क्या अचीव करना है, ये डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे किसी काम को एग्जीक्यूट करना है। दैट्स वाई इट इज़ अ मैनेजरियल देन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये ज़्यादा मैनेजरियल फोकस पे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पे इनका फोकस कम होता है। एंड नंबर थर्ड इन द लास्ट, इट इज़ सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो इट इज़ ऑपरेटिव। ये इनका मेन फोकस होता है काम को करने से। इट इज़ मोर सुपरवाइज्ड देन मैनेजरियल, इनका मेन काम होता है मैनेजर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना नहीं होता है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी स्टाफिंग डिसाइड करना, एक अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना, ये भी टॉप लेवल का काम होता है। टॉप लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, मिडिल लेवल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पे फोकस करता है, और सुपरवाइजरी उन सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मिडिल लेवल के थ्रू बनाए गए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग को एट प्लेस, जिसे हम कहते हैं रियलिटी में, उसको ऑपरेट करता है। ऑपरेट मतलब उसको इम्प्लीमेंट करता है। सो इट इज़ मोर सुपरवाइजरी दैन मैनेजरियल। इसका काम होता है काम जो हो रहे हैं उसको सुपरवाइज करना। काम डिसाइड हो चुका है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू, उसके लिए रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, लोग स्टाफ हो चुके हैं, सब हो चुका है। बट सुपरवाइजर लेवल का काम क्या है? काम को सुपरवाइज करना और देखना कि दे विल completed their task on the time and with the least utilization of the resources. So in today's video we discussed the two important things. The first one is the nature of management. So in this session we discussed management is not a pure science, it is a social science. Number two, management is a pure art because all the feature of the art is present in the management. Number third, management is not a profession. It is not a full-fledged profession. It is a developing profession. After some year, management becomes a full-fledged profession. And at last, we discussed the difference between the top level, middle level and lower level of management. And we can see that there are basically few differences between the top level, among the top level, middle level and supervised level, that is on the basis of time range, skill, evaluation, number of person, formally for formulation and nature. Okay, so at the end of today's video, I expect from your side, please revise all the topics, each and every topics from your book as well as from the NCERT book, as well as please solve all the exercise question given in your book as well as in your side book. Please take a few types of the sample paper and solve all the questions from the chapter number 1, and please solve maximum multiple choice question, objective type question. Please solve जितना हो सके maximum
solve the practical question, object, especially the objective type of the question. Okay, so I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care.